मॉर्निंग चिल्ड्रन। गुड मॉर्निंग। चलो आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 4 के ईवीएस बुक के शिवा छत्रपति जी के बुक का 6th चैप्टर जिसका नाम है द ओथ ऑफ स्वराज, स्वराज की शपथ। इसके पहले के सारे वीडियो में हमने जाना कि शिवाजी को स्वराज्य स्थापित करने के लिए संतों ने और बाकी लोगों ने क्या क्या हेल्प किया है और क्या क्या मदद की है। हमने जाना शिवाजी का बचपन, शिवाजी की पढ़ाई और शिवाजी की शादी। ठीक है, अब हम जानेंगे शिवाजी का आगे की जर्नी डालते हैं। ठीक है, सो पहले स्टार्ट करेंगे द ओथ ऑफ स्वराज, स्वराज की शपथ। द टेम्पल एट रायरेश्वर। To the southwest of Pune, there is a spot called Raireshwar, famous for its temple. In the year 1645, an extraordinary event took place there. Shivaji and a few Mawlas from the neighboring valley had gathered there. Why had they come to this lovely spot hidden in the deep forest? What did they discuss and what favor did they ask of Lord Shiva? तो रायरेश्वर का मंदिर पुणे के दक्षिण में रायरेश्वर नामक एक सुंदर स्थान है जो अपने मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। वर्ष 1645 में वहाँ एक असाधारण घटना घटी। शिवाजी और पड़ोसी घाटी से कुछ मावल वहाँ एकत्र हुए थे। वे घने जंगल में छिपे इस सुंदर स्थान पर क्यों आए थे, उन्होंने क्या चर्चा की और उन्होंने भगवान शिव से क्या वरदान मांगा। आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग अहेड, द फियरी इलोक्वेंस ऑफ यंग शिवाजी, युवा शिवाजी की ओजस्वी वाक्पटुता। Shivaji was still quite young, but his mind was already busy planning big things. He opened his mind to his playmates and said, "My dear friend, today I am going to talk to you about something which is in my mind for a long time. My father Shahaji Raje is a Sardar at court of Bijapur. It is he who has given me the charge of this Jagir. Everything is going on well and peacefully, but friends, I am not happy. Must we always remain satisfied as bondman of the Sultan? Must we always eat out of other people's hand? We are surrounded on all sides by foreign kingdoms which are constantly at war. Our people get killed for nothing during these wars and family after family gets uprooted. Our country suffers destruction, and what do we get out of all this? Nothing but slavery. How long shall we continue to tolerate this? How long shall we lay down our lives for others? Shall we allow this to continue just for the sake of small watan? What have you to say about all this?" Shivaji was speaking with great emotion and his face was red with anger. In the middle of his speech, he stopped and looked at his companions. The young Mawlas gathered there in the inner sanctum of Raireshwar were greatly thrilled by Shivaji's speech. They had seen a new vision. One of them said, "Our young prince, tell us clearly whatever is in your mind. We are prepared. We are anxious to do your bidding." "Yes, Raje," they all said with one voice. "We are with you. We shall do whatever you say at the cost of our lives if need be." So children, I am trying to make you understand with English as well as Hindi. If you are liking the video, requesting you to please subscribe, share and also hit the notification button. Alright? Yes. Okay. So moving ahead, आगे बढ़ते हैं। युवा शिवाजी की ओजस्वी वाक्पटुता। शिवाजी अभी भी काफी युवा थे, पर उनका मन तो पहले से ही बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने में लगा हुआ था। उसने अपने साथियों के सामने अपना मन खोलकर कहा, "मेरे प्यारे दोस्त, आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने जा रहा हूँ जो मेरे मन में बहुत दिनों से है। मेरे पिता शाहजी राजे बीजापुर के दरबार में सरदार हैं। उन्होंने ही मुझे इस जागीर का प्रभार सौंपा है। सब कुछ ठीक ठाक और शांतिपूर्वक चल रहा है, पर दोस्तों मैं खुश नहीं हूँ। क्या हम हमेशा सुल्तान के सिपाहियों की तरह ही संतुष्ट रहना चाहिए? क्या हमें हमेशा दूसरों के हाथ से खाना चाहिए? हम चारों तरफ से विदेशी राज्यों से घिरे हुए हैं जो लगातार युद्ध करते रहते हैं। इन युद्धों में हमारे लोग बिना वजह मारे जाते हैं और परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। हमारा देश बर्बाद हो जाता है और हमें इस सब से क्या मिलता है? गुलामी के अलावा कुछ नहीं।
हम कब तक यह सब बर्दाश्त करते रहेंगे? कब तक हम दूसरे के लिए अपनी जान देते रहेंगे? क्या हम एक छोटे से वतन की खातिर यह सब जारी रहने देंगे? इस सब के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? शिवाजी बहुत भावुक होकर बोल रहे थे और उनका चेहरा गुस्से से लाल था। अपने भाषण के बीच में ही वह रुक गए और अपने साथियों की ओर देखने लगे। रायरेश्वर के भीतरी गर्भगृह में एकत्रित युवा मावलों को शिवाजी का भाषण सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्हें एक नया सपना दिखाई दिया था। उनमें से एक ने कहा, हमारे युवा राजकुमार, जो कुछ भी आपके मन में है हमें स्पष्ट रूप से बताएं। हम तैयार हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए उत्सुक हैं। हाँ राजे, वे सभी एक स्वर में बोले, हम आपके साथ हैं। यदि आवश्यकता हुई तो हम अपनी जान की कीमत पर भी जो कुछ भी कहेंगे वो करेंगे। मूविंग अहेड, द ओथ ऑफ स्वराज। स्वराज की शपथ। Shivaji got fresh inspiration from their words. Looking at each one of them, he said, friends, our path is clear. We shall all strive to attain our ideal. Work for it till it is achieved. All should be ready even to sacrifice their lives for this ideal, which is Hindvi Swaraj. We will have our own Raj, yours and mine and everybody's. We refuse to live as slaves anymore. Let us take this oath with Lord Raireshwar as witness. We give ourselves completely to the great task of establishing our own Raj Swaraj. शिवाजी को उनके शब्दों से नई प्रेरणा मिली। उन्होंने सभी की ओर देखते हुए कहा, मित्रों, हमारा मार्ग स्पष्ट है। हम सभी को अपने आदर्श को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जब तक वो प्राप्त न हो जाए तब तक उसके लिए काम करना चाहिए। सभी को इस आदर्श हिंदवी स्वराज के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारा अपना राज होगा, तुम्हारा, मेरा और सबका। हम अब गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते। आइए हम भगवान रायरेश्वर को साक्षी मानकर शपथ ले। हम अपने स्वराज की शपथ के महान कार्य के लिए स्वयं को पूरी तरह समर्पित करते हैं। मंदिर में शिवाजी के शब्द गूंज रहे थे। भगवान चाहते हैं कि यह राज्य हिंदवी स्वराज के रूप में आकार ले। हम देखेंगे कि भगवान की इच्छा पूरी होती है। इसलिए मावलों ने मंदिर छोड़ दिया, स्वतंत्रता की शपथ ली, स्वराज की शपथ ली। शिवाजी का मन भर गया। बहुत खुशी के साथ पुणे पहुंचते ही वह सीधे लाल महल में अपनी माँ से मिलने गए। उसने रायरेश्वर में हुई सारी बातें अपनी माँ को बताई। बहुत खुश होकर जीजाबाई ने संतोष के साथ सोचा कि शिवाजी वह सब पूरा करेंगे जो हमेशा से उनके मन में था।